Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management Junction, where you learn things in a very simple and easy way. I'm Manoj Kumar, currently working as an assistant professor, two-time UGC NET qualified in management. So here we are going to cover the topics for BBA, BCom, MBA, UGC NET and even the student of 12th class who are having their subject as business studies. So if you are new to the channel, then do like my video, share my video, subscribe my channel. So in the last lecture we have discussed about the marketing meaning and scope. So I hope the difference between marketing and sales, customer and consumer, the function of marketing are clear to you. So today we will discuss about the marketing philosophies. So without any delay, let's get started. So marketing philosophies. So if we talk about the term philosophy, philosophy means it is the study of ideas, belief about the meaning of life. But here we are having the two terms. One is your marketing and second one is your philosophy. So here it is the idea and belief about the marketing. Okay. So marketing philosophy basically means we are going to get the idea and beliefs about the marketing, and according to the companies that can vary, but there is a base which will going to be same for each and every organization and company. So marketing philosophies are the guiding principles and approaches that organization adopt to create, communicate, deliver and exchange the value with their target customer, right? After that, it is a foundation for the marketing strategies which will help you to shape how your company perceive and interact with their market. These things we are going to be elaborated in the next slides. So talking about again the marketing management philosophy, so as I said that this is the belief and idea. So each and every company have their own idea that how they will do the production, how they are going to sell the market, how they will do the marketing, right? The strategies they are going to use, marketing or the sales, they are going to do the aggressive sales method or some other method over there, push strategies, pull strategies, all those things. So for example, a company which makes cap for very high quality with high selling rate and invest lot of money to make their brand value. So here the company is investing lot of money to make their brand, right? So this is their marketing management philosophy, that how they are going to produce, how they are going to market their product, how they are going to sell their product. After that, so in this lecture, we will explore the 5 key marketing philosophy, which is production orientation, then product orientation, selling orientation, marketing orientation, and societal orientation. So I think from the name you can make some guesses, like अगर हमें फिर से वही बात कहनी हो कि अगर कंपनी का जो है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, इट मींस दे आर टोटली फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन पार्ट की हमें मे बी बहुत मास लेवल पे प्रोडक्शन करना है. प्रोडक्ट ओरिएंटेशन मींस यहाँ पे कंपनी टोटली अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है कि हाई क्वालिटी का, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट, हाउ वी कैन मेक आवर प्रोडक्ट यूनिक फ्रॉम आवर कंपिटिटर्स, वो सब चीजें होगी. सेलिंग ओरिएंटेशन, अब हमने प्रोडक्ट बना भी लिया है, वी आर हैविंग द यूनिक फीचर्स, बट हाउ वी आर गोइंग टू सेल, हाउ वी आर गोइंग टू टारगेट आवर कस्टमर, लाइक फॉर दैट दे डू द STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. कौन सा हमारा एरिया रहेगा, कौन सा सेगमेंट रहेगा, हम कैसे उनको टारगेट और पोजीशन करेंगे. देन द मार्केटिंग ओरिएंटेशन. मार्केटिंग ओरिएंटेशन मतलब हमारा जो एडवर्टीजमेंट का पार्ट रहेगा, प्रमोशन का पार्ट रहेगा, वो किस तरह से रहेगा, हम कौन से मॉडल को यूज कर रहे हैं, हमारा किस तरह का थीम रहेगा. देन सोसाइटल ओरिएंटेशन. सोसाइटल ओरिएंटेशन मींस आप वहां पे कहीं ना कहीं कस्टमर्स के बारे में सोच रहे हो, right, for the benefit of the society. So let's okay, so the very first orientation or the concept of marketing philosophy is production orientation. So in production orientation, companies are having the idea or belief that they are going to focus on maximization of the production and they are going to reduce the cost. Now how you can reduce the cost? By utilizing your resources in a best way, by doing the maximum utilization of the resources. This is how you can reduce the cost and increase the profit. Okay, after that
द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी, द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, इसमें सबसे पहला हमारा फोकस रहेगा दैट इज ऑन द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, मींस हमारा प्रोडक्ट कितना इजीली अवेलेबल हो सकता है. सो द कंपनी एम टू प्रोड्यूस द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट टू मीट मार्केट डिमांड. अब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, वी हैव टू मीट देयर डिमांड. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू डू द मास प्रोडक्शन और द बल्क प्रोडक्शन सो दैट वी विल बी एबल टू रीच दैट particular demand. So it assumes that consumer will prefer the product that are widely available and affordable. ये चीजें आपको अभी एग्जांपल में आगे और अच्छे से क्लियर होंगी. बट बिफोर दैट द सेकेंड थिंग जो हमने इस फिलॉसफी में ही कहा दैट दे आर फोकसिंग ऑन द कॉस्ट रिडक्शन. सो दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट. मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस पे हमने क्या ध्यान दिया कि हमारा जो भी रॉ मटेरियल था वो कहीं पे भी वेस्ट तो नहीं हुआ, उसे हमने बेस्ट वे में यूज किया. वो कैसे यूज हो सकता है, जब हम मास प्रोडक्शन करेंगे. अब हम एकदम से हमारे पास ऑर्डर अगर 10,000 यूनिट्स का आता है तो हमें रॉ मटेरियल भी वहां पे सस्ता पड़ जाएगा, राइट. वहीं अगर हमें सिर्फ 1000 यूनिट बनानी है तो उसके लिए जो हमारा रॉ मटेरियल वो थोड़ा महंगा होगा एज कम्पेयर टू द 10,000 यूनिट्स, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन डू द कॉस्ट रिडक्शन. आफ्टर दैट लिमिटेड कस्टमर रिसर्च. अब यहाँ पे क्या है, वो ज़्यादा रिसर्च में नहीं जाएंगे, इस पे उनका अटेंशन बहुत ही कम रहेगा. उनका मेन मोटिव है हमें मास प्रोडक्शन करना है, हमें मास लेवल पे रीच करना है. एक ही टाइम पे हमें इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करके हर एक जगह पे हमें वो रीच करना है अपना प्रोडक्ट. देन द मास मार्केटिंग, जो मैं अभी इतनी देर से कह रहा हूँ, मास मार्केटिंग मीन्स मास प्रोडक्शन माइंडसेट इज अडॉप्टेड एंड टारगेटिंग अ ब्रॉड कस्टमर बेस. अभी जो एग्जाम्पल आएगा उससे आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं. ओके, सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेशन इज कोका कोला, राइट. So Coca-Cola is known for its mass production and wide distribution. They totally focus on producing their beverages at a large scale to ensure the availability in numerous markets worldwide. So as a fact, you can see here Coca-Cola or Coke, which is a carbonated soft drink manufactured by Cola Company. So in 2013, Coke products were sold in 200 countries worldwide, with consumer drinking more than 1.8 billion कंपनी बेवरेजेस सर्विंग ईच डे, राइट. सो यहाँ पे उनका टोटली फोकस किस चीज के ऊपर था, मास प्रोडक्शन के ऊपर है, कि हमें वो रिसर्च पे नहीं जा रहे, बिकॉज दे आर एबल टू मीट द नीड और द डिमांड ऑफ द कस्टमर. उनको पता है कि ये ड्रिंक चलेगा ही चलेगा, सो दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मास प्रोडक्शन. ओके ओके, सो द सेकेंड ओरिएंटेशन और कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. सो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, बिलीफ है, आइडिया, वो प्रोडक्ट के अराउंड ही घूम रहा है. सो द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन इट्स टोटली सेंटर अराउंड क्रिएटिंग द सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड एज्यूम दैट कस्टमर विल ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट एंड परचेज देम. जब मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. कंपनी अब यहाँ पे मास प्रोडक्शन पे ज़्यादा नहीं जा रहा है, राइट. अगर ऑब्वियसली वो इतना अच्छा प्रोडक्ट मार्केट को दे रहे हैं तो कस्टमर उसकी डिमांड अपने आप ही करेगा, वो उनके फीचर्स को अप्रिशिएट करेगा, वो अपने आप परचेज करने जाएगा. जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी, बट अभी शायद आपके माइंड में भी वो एग्जांपल क्लिक कर रहा होगा. सो टॉकिंग अबाउट द की फीचर, फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट इनोवेशन. अब आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से बिल्कुल सुपीरियर बना सकते हो, अदर कंपटीटर से उसको जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, दैट इज द इनोवेशन पार्ट. मींस आप इन्वेंशन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, आप अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो. सो कंपनी इन्वेस्ट हैविली इन द रिसर्च डेवलपमेंट टू क्रिएट द इनोवेटिव एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. आफ्टर दैट सेकेंड थिंग इज, जैसे मैंने कहा कि डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे, द डिफ्रेंशिएशन. तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी, इफ यू आर एबल टू गिव द यूनिक फीचर, द सुपीरियर परफॉर्मेंसेस एंड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स दैट सेट द कंपनी अपार्ट फ्रॉम द कंपटीटर्स. ओके, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको एग्जांपल का, दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. सो आई थिंक अब वो चीजें और ज्यादा क्लियर हो गई होंगी आपके माइंड में. देन द लिमिटेड कस्टमर इनपुट. यहाँ पे कस्टमर फीडबैक को जो है वो सेकेंडरी रखा जाता है, प्राइमरी क्या है, इनोवेशन और डिफरेंशिएशन को. बिकॉज कंपनी का अपना ओन विजन एंड एक्सपर्टीज है, उन्हें पता है हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी कितना अच्छा है अदर कंपटीटर से, हम उसको और कितना ज्यादा एडवांस कर सकते हैं,
राइट. देन द मार्केटिंग कम्युनिकेशन. सो यहाँ पे जो प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग है, दैट हाईलाइट द प्रोडक्ट फीचर एंड बेनिफिट्स टू अट्रैक्ट कस्टमर अटेंशन. अब अभी जिस कंपनी का ब्रांड का मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, उन्होंने अभी पिछले महीने ही ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन किया था. आई होप अब तक आपको वो एग्जांपल आपके माइंड में आ गया होगा. सो यस, हियर इज द एग्जांपल विच इज एप्पल. Right, so Apple is renowned for its product orientation approach, placing a strong emphasis on product design, innovation and quality. Right, अभी जून 5th जून को क्या था उनका WWDC वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस. अब वो हर एक साल जून में क्यों करवाता है उसको? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अनवील देयर विजन रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स. जैसे कि मैकबुक की बात करें, मैकबुक पहले 13 इंच था, तो इस बार उन्होंने कहा कि नाउ वी आर कमिंग विद द 15 इंच मैकबुक एयर अलॉन्ग विद द पावर हाउस मैक स्टूडियो, मैक प्रो, द ब्रेक थ्रू लाइक उसका M2 अल्ट्रा चिप था. एक्साइटिंग न्यू फीचर कमिंग उनके iOS में था. 17 आने वाला है उनका iOS. आईपैड का ऑपरेटिंग सिस्टम 17 आने वाला है. मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम सोनोमा आने वाला है. वॉच का ऑपरेटिंग सिस्टम 10 होने वाला है. टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम उनका 17 होने वाला है. एंड एयरपोर्ट्स, राइट. एंड जो नेक्स्ट WWDC होने वाला है वो अब 2024 जून में होगा, राइट. सो वो वहां पे उनको पता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में. सो कंपनी कॉन्टिन्यूसली इंट्रोड्यूसिंग देयर न्यू फीचर्स, अपग्रेड्स टू द डिवाइसेस लाइक आईफोन, आईपैड, मैकबुक. अभी अगर हम करंटली बात करें, मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था 14 प्रो मैक्स. वो कॉन्सेप्ट क्या था उनका कि उनका जो आइलैंड वाला था कॉन्सेप्ट, वो उसमें और ज़्यादा क्लियर होके आया. उनका बायोनिक चिप न्यू था, उसमें बैटरी का स्टोरेज ज़्यादा लेके आया, वो कैपेसिटी ज़्यादा लेके आया बैटरी की वहाँ पे, राइट. सो ये सब चीज़ें हैं. वो टोटली फोकसिंग ऑन द इनोवेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, सो जो थर्ड ओरिएंटेशन या कॉन्सेप्ट है दैट इज सेल. इट मीन्स कंपनी टोटली फोकसिंग ऑन द सेल पार्ट. हम किस तरह से अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. सो दे आर टोटली फोकसिंग ऑन द सेल्स टेक्निक, ऑन द प्रमोशन, ऑन द कस्टमर एक्विजिशन एंड रेवेन्यू. इन सब चीज़ों पे उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा. ठीक है जी. आफ्टर दैट जो की एस्पेक्ट्स हैं हमारे सेल्स और सेलिंग के, उसमें सबसे पहले हो गया सेल फोकस. इट मीन्स दे वांट टू सेल एज मच एज पॉसिबल. दे वांट टू परसुएड देयर कस्टमर्स विद देयर टैक्टिक्स, विद देयर स्ट्रेटजीज. देन आफ्टर दैट द सेकेंड पॉइंट इज हाई सेल प्रेशर. द सेल पीपल आर इन, उनको जो है वो आप एक तरह से टारगेट दोगे कि अगर आप इतना सेल करोगे आपको इतना कमीशन मिलेगा, राइट. सो इस चक्कर में वो कई बार जो कस्टमर रिलेशनशिप पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बिकॉज दे आर हैविंग द मनी माइंड. उनको सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है. वाइल द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव्स, ऑब्वियसली सेल का मतलब क्या हुआ, जितना हमारे पास स्टॉक है उसको बस खत्म करो, हमें प्रॉफिट पे प्रायोरिटी देना है, और लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं उनको. इट मीन्स कहीं ना कहीं वो ज़्यादा टाइम के लिए फिर सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं. देन द लिमिटेड रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिकॉज वो कस्टमर रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं. दे आर प्रोवाइडिंग द फीचर्स अकॉर्डिंग टू दैट, so they just want to sell out their product over there. So here the example which we are going to consider is GoPro, the popular action camera manufacturer company. So they heavily invest in the advertising marketing campaign pay. They are trying to showcase their exciting and adventurous capability for their product. Their marketing material often features some extreme sport athletes and thrilling outdoor activities. They are creating some urgency or excitement around their brands. So they totally utilize their sales technique. जैसे कि हमारे पास बहुत ही limited time offer है, वो discount देंगे. They will try to do the bundling deals to encourage the immediate purchase of the product. Okay. Then the fourth thing is marketing orientation. मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मतलब हुआ you are just focusing on the advertisement and promotion part, and this is the basic, or we can say the initial or the first stage, because marketing is the advertisement and promotion of the product. You are trying to make aware the people about your product. You are trying to give the information to the product, and you are trying to understand and satisfy the customer needs and wants over there. सो इसमें जो की एस्पेक्ट रहता है दैट इज STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, कि हम कौन से एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करने वाले हैं, राइट.
क्या वो एज बेसिस पे हो सकता है, जेंडर बेसिस पे हो सकता है, ऑक्यूपेशन लेवल पे हो सकता है, इनकम लेवल पे हो सकता है, एरिया वाइज हो सकता है, जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक, कुछ भी हो सकती हैं वो चीज़ें. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल ट्राई टू पोजीशन देम. हमें एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बना के रखना अपने जो भी कस्टमर्स हैं और मैनेजमेंट का आपस में एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए. सो इट्स टोटली ऑन द कस्टमर सेंट्रिक. आप कहीं ना कहीं अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करवाने के प्रोमिसेस कर रहे हो. सो दिस अप्रोच एम टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फेक्शन. कहीं ना कहीं कस्टमर आपके लॉयल हो जाएंगे इफ यू आर एबल टू क्रिएट द वैल्यू फॉर देयर प्रोडक्ट और द सर्विसेज. सो हियर वी आर कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ Amazon. Amazon टाइम टू टाइम अपना क्या करता है, ऑफर्स निकालता रहता है. दैट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, राइट. So Amazon is a prime example of a company which embraces the marketing orientation. Here I'm giving you a image जो कि अभी 15-16 जुलाई को आने वाला है. इनका प्राइम डे इनके जो है उसमें ग्रेट डील्स हैं, ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट है, न्यू लॉन्चेस होने वाले हैं, तो उन्होंने 15-16 का रखा है. नाउ दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं. सो दे आर ट्राइंग टू डू द लिवरेज ऑफ एक्सटेंसिव कस्टमर डाटा. दे कंडक्ट थॉरो मार्केट रिसर्च. वो अपनी रिकमेंडेशन को पर्सनलाइज करते हैं, ऑफर्स दिखाते हैं, शॉपिंग एक्सपीरियंस. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि SBI कार्ड्स पे 10% सेविंग है, ICICI बैंक पे आपको 10% सेविंग है, वो सब चीज़ें. सो दे टोटली फोकस ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी थ्रू देयर फीचर्स लाइक जो उनका शिपिंग का रहेगा, उनके रिव्यूज रहते हैं, या फिर जो पर्सनलाइज प्रोडक्ट सजेशन रहते हैं, वो सब चीज़ें. सो द लास्ट ओरिएंटेशन इज सोसाइटल ओरिएंटेशन और द सोसाइटल कॉन्सेप्ट. इट मीन्स कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही थी बट साथ साथ में वो सोसाइटी का बेनिफिट देख रही है, सोसाइटी का वेलबींग देख रही है. उसके लिए एक टर्म होती है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन विच company have to contribute some percentage of their profit for the well-being or the benefit of the society, right. So यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर होगी कि हम कहीं ना कहीं सोसाइटी का बेनिफिट भी देख रहे हैं. तो उसके लिए की एलिमेंट्स क्या रहेंगे? सबसे पहले कस्टमर फोकस, अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द कस्टमर नीड्स, वट एवर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ. कभी आपने क्लासमेट्स की नोटबुक्स खरीदी होंगी, उसमें आपने बैक कवर पे देखा होगा कि इसका 1 रुपया जो है वो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जाता है. Every time you are buying a single notebook, you are trying to contribute for the study, for the education of poor children, right? So that is a societal orientation. After that, research and analysis. एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च उसमें की जाती है, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होती हैं. वैल्यू क्रिएशन करना पड़ेगा हमें, अपना प्रोडक्ट सर्विस अच्छे से देना है, एक्सपीरियंस अच्छा देना है. रिलेशनशिप बिल्डिंग करना पड़ेगा. वो क्या था वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग है. जैसे आप डाबर आंवला का हेयर ऑयल लोगे, उसमें भी कुछ टाइम पहले आता था कि उसका 1 रुपया जो वो बच्चों की स्टडी के लिए जा रहा है, वो सब चीज़ें, वो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग वहाँ पे हो रही है. देन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने आपको बताया CSR है. यू हैव टू पे 2% और 2.5% ऑफ योर profit for the benefit of the. So here we are considering the example of Tata Group, right? So Tata Group का सबसे पहला thing है CSR, corporate social responsibility, जिसमें they are focusing on the education, health care, rural development, sustainable livelihood. इन सब चीज़ों में वो contribute करते हैं अपने profit से. Then education initiatives, उसमें उनका जो है TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, टाटा मेडिकल सेंटर है. दीज आर द प्रोमिनेंट एग्जांपल जो दिखा रहा है कि वो कैसे सोसाइटल वेलबींग, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं. आफ्टर दैट द हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आपका मुंबई में एज अ रिनाउंड cancer research and treatment center, right? Additionally, they are having the Tata Medical Center in Kolkata, which provide advanced cancer care services. So this is showing that how much they are concerned about the societal well-being or the societal benefits. Then the environmental sustainability. It means वो कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो. दे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन देयर ऑपरेशन एंड द कंपनी एम टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो इन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक कंपनी जो है वो सिर्फ अपना प्रॉफिट ही नहीं देख रही है बट साथ साथ में सोसाइटी की वेलबींग, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट भी चाहती है, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू डू अ कंपेरिजन. जो हमने अभी 5 फिलोसफीज या 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े,
क्या क्या थे वो? दोज आर प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल। तो अगर हम पहले बात करेंगे, जो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है उसका मेन फोकस रहता है एफिशिएंसी पे, हमने जब बात की थी। देन सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, दे आर टोटली फोकसिंग ऑन द क्वालिटी एंड इनोवेशन, इसलिए हमने एप्पल का एग्जांपल लिया। मैक 13 से 15 हुआ, 14 प्रो से अब 15 आने वाला है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होने वाला है। देन द सेलिंग ऑफ ओरिएंटेशन, अब सेलिंग नाम से क्लियर था, सेल है, मींस वो टोटली सेल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मार्केटिंग ओरिएंटेशन, मार्केटिंग ओरिएंटेशन मतलब वो कस्टमर के ऊपर फोकस कर रहा है, बिकॉज वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, वो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना चाहते हैं एरियाज को। देन द सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन मींस नाम से क्लियर था, वो सोसाइटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। देन जो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन था उसकी कस्टमर ओरिएंटेशन लो है, बिकॉज वो एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान दे रहा है। So, वहाँ पे क्या था टोटली, जैसे हमने कोका कोला का एग्जांपल लिया था, वो मास प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहा था, जिससे कि उनकी कॉस्ट कम पड़ेगी और एट अ टाइम दे आर ट्राइंग टू डू द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। देन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, कस्टमर ओरिएंटेशन थोड़ा सा मीडियम है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब उनका प्रोडक्ट उतना एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है तो कस्टमर अपने आप उस चीज को रीच करेगा। सो दे आर टोटली फोकसिंग ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑब्वियसली अगर अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो अपने आप ही उसकी डिमांड होगी। देन सेलिंग ओरिएंटेशन, यहाँ पे कस्टमर ओरिएंटेशन थोड़ा मीडियम है, क्योंकि बेचेंगे किसको, कस्टमर को ही बेचेंगे ना, तो ओरिएंटेशन रहेगा थोड़ा सा। बट साथ साथ में उनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि हमने एग्रेसिव सेलिंग करना है, हमने अच्छी अच्छी प्रमोशनल टेक्निक्स करनी है, हम फ्लैट 50% ऑफ दे देंगे, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, बाय टू गेट टू फ्री, इस तरह के हम स्ट्रेटेजीज वहां पे यूज कर रहे हैं। देन मार्केटिंग ओरिएंटेशन, नाम से क्लियर था कि हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब हमारा पूरा का पूरा ध्यान कस्टमर्स के ऊपर है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि करंट डिमांड क्या है, नीड क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है कस्टमर्स के, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर ट्राइंग टू सेगमेंट, वी आर ट्राइंग टू टारगेट, वी आर ट्राइंग टू पोजीशन आवर कस्टमर। देन द लास्ट थिंग इज सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन, जो कि थी सोसाइटी और कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पे भी जो हमारा ओरिएंटेशन है वो टोटली हाई है, पर क्योंकि हम वहाँ पे सोसाइटी का बेनिफिट या अपलिफ्टमेंट देख रहे हैं, तो हम चीज़ें चाहते हैं कि सस्टेन रहे। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर ट्राइंग टू एड्रेस द सोसाइटल चैलेंजेस, और हम कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं फॉर द well-being or the upliftment of our. So with this we have completed all the 5 marketing philosophies or the concept. I hope the concepts are clear to you, but still if you are having any doubt you can put that in a comment section. So thank you all. Do like my videos, do share my videos, do subscribe my YouTube channel if you are new to the channel. Press that bell icon so that आपके पास हर एक notification time से पहुंच जाए. So thank you everyone, have a nice day, see you in the next video. Till then, bye bye.